period, that also I tried to collect information. If you see the former commissioner's letter, he mentioned in mid-February he was briefed by certain officers that they got such and such instruction from Home Minister. Correct? Now I got a documentary evidence from 5th February to 15th February. Mr. Deshmukh was admitted in the hospital because of the corona. And I got the hospital from Nagpur, Alexis, Alexis, Alexis is the name of hospital, and this hospital has given certificate later. This is to certify that Mr. Anil Deshmukh, aged 70 years, was admitted in the Alexis multi-specialist hospital in Nagpur under my care from 5th February to 15th February for mild COVID-19 illness. So going to main issue, there is a clear-cut information, there is a record that Mr. Deshmukh was hospitalized, and it is also certified by hospital. Secondly, he was discharged on 15th of February and advised from 15th February to 27th February for house quarantine. In that period, he was house quarantined. These 2 days I am deliberately giving. Because former CP's letter, he suggested regarding collection of money, fund, everything. The Honorable Home Minister, around the mid-February, calls Sri Vadhe at his official residence and some instructions were given. So it is absolutely clear Mr. Deshmukh was in Nagpur in this particular hospital. Now, second issue is what CP is saying, he was briefed same day by that low-level officer that such and such conversation was between him and Home Minister. Same day, he mentioned same day, Vadhe was briefed by, so-called briefed by Home Minister, same day, that is former CP's version. Now, another issue which I just think this is not anybody raised is that March 3rd week or 2nd week, he mentioned in his letter he has briefed CM, Deputy CM and me. And I said it is correct that he met me. I don't know about CM and Deputy CM. I asked them, they said yes, but he met me, that is more important. So this was in 2nd week of March. See, suppose in mid-February, CP got this type of information. So while he was waiting up to 2nd week of March for a whole month, this is an important issue. It was his duty, at least he should say something in writing. At least it was his duty to register
such and such thing to certain record, but that is not done. He has discovered all these things when he was about to transfer or he transfers. But all these things, I am not going in detail, it's not my job. Ultimately, whoever will inquire, they will go in detail. Yesterday I also suggested, for sake of inquiry, somebody should be senior most officer and whose reputation is above all should take this responsibility. And I suggested, this is suggestion. Not, I have not discussed, I also said I have not talked. Name of Sri Rivero, but Rivero has taken for me stand. He is not going to take any responsibility so that issue is not there. Now for me, important issue is whatever this conversation, allegation, everything, that Hussein will invest, that will come what is the truth. But from my side, what I honestly feel, important issue is what was the main case? Main case was certain items were kept in particular vehicle, somewhat near to house of Sri Ambani. Then, of course, police must have started investigating who has kept this vehicle, who owns this vehicle. And it looks like that they come to conclusion, or at least they got the information, may not be conclusion, but information, this particular jeep was in the custody of one deceased Hiren. And one fine morning we read that Hiren was assassinated. Now the investigation might have started. What is the role of Hiren in this jeep? Is it correct that this was with him for many months? Is it correct that his jeep was taken from him by some police officer? And one fine morning we read, Hiren is no more. Now, ATS Bombay has yesterday or today announced they have arrested 2 persons in connection with assassination of Hiren. So I think एक तो बात साफ हो रही है कि हिरेन की हत्या किसने की। हिरेन की हत्या करने वाले पुलिस को, एटीएस को जो लक्ष्य है, ऐसे लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया। अभी बात आएगी आगे इन्वेस्टिगेशन में कि why he has done this, these 2 gentlemen has done this, whether somebody has told him. That is in investigation process. Facts will come today, tomorrow, day after tomorrow, can't say, but something will happen. But I am happy about one thing. The main case was not the allegation or anything from CP. Main case was certain material near Mr. Ambani's house, A, that was kept in Jeep, B, then the Jeep was the custody of so and so, C, and ultimately the Jeep who was claiming he was the owner of
on his possession, he was assassinated, and ATS Bombay had reached and arrested those who are involved in assassination. So, real case was that, and I think Bombay ATS is going on correct direction. So just to divert this entire was that, and I think Bombay ATS is going on correct direction. So just to divert this entire investigation, while some people might be saying about something happened between him and Home Minister was asking such and such thing. Achha, when they made a statement, the Home Minister was asking, is there any reason, is there any actually cash transaction was given, any allegation? Just vague allegation has been made, and I honestly feel the investigation which is reaching at pinpoint, there was effort to divert that investigation, and now the truth is coming. Now you can ask if you want it. Yeah, in fact, when we got all this information, when we got that Mr. Deshmukh was hospitalized, and that's why the allegation was made exactly in the same place. And when he was in hospital, it established there is a hospital certificate, and the all government record also said that entire 3 weeks he was not involved with. He was in Nagpur, that is his hometown. And that's why in such situation, question doesn't arise. सरकार कह रही है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर और केंद्र सरकार। सदन में हंगामा हो रहा है। क्या आप अनिल देशमुख के लिए वाउच करेंगे सर कि वो पाक साफ है और इसमें कोई सरकार का मंत्री लिप्त नहीं है? मैंने सीधी बात कल भी कही थी कि सरकार के ऊपर कुछ असर नहीं होगा। एक दूसरी जिन मिनिस्टर के बारे में एलिगेशन था, ये एलिगेशन जिस मिनिस्टर के बारे में था, इस मिनिस्टर की उस समय की स्थिति क्या होती ये साफ हो गया है। और ऐसे परिस्थिति में उनको इस्तीफा मांगना, because yesterday I myself said it looks like a serious thing, but when I saw all the documents, I saw all the program, and I am convinced that this particular period he was in Nagpur. So question doesn't arise. दबाव टाकण्यात येत आहे का अशा पद्धतीने पत्र लीक करून महाराष्ट्र सरकारच्या गृहमंत्र्यांना अडचणीत टाकणं, सरकारला अडचणीत टाकणं हे केलं जाते का राष्ट्रीय षडयंत्र वाटते? इसी बेसिकली जो कुछ लिखा गया, जो फॉल्स एलिगेशन या क्रॉस एलिगेशन जो किए इस बारे में, अल्टीमेटली मैंने कल कहा था कि इट इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर तो इन्वेस्टिगेट करना तो इन्वेस्टिगेट करो, कुछ एक्शन लेना है या कुछ एक्शन ले लो, जो कुछ करना है वो कर सकते हैं, ये मेरा काम नहीं। बीजेपी ये भी कह रही है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन होती है, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, तब तक अनिल देशमुख को स्टेप डाउन करना चाहिए क्योंकि उनके होम मिनिस्टर रहते। एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकती है? सीधी बात ये साफ हो गई कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो फिर अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकद नहीं रही। तुम्ही पूर्ण सत्य सांगत नाही, इतकंच नाही तर देवेंद्र फडणवीसांनी आरोप केलाय की याआधी पण 2 पोलीस अधिकाऱ्यांनी रिपोर्ट दिले ते आपण लपवतात, हे तुमच्यावरच आरोप केलाय। माझ्या त्याच्यावर म्हणजे माझं भाग्य है कि उन्होंने मैं इस्तीफा ऐसे नहीं कहा। उन्होंने जो कहा ये हाफ सच है, ये बात करेक्ट नहीं। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास कल थी मैंने दी, आज इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई, वो भी आ गई। मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे सेंसिटिव इशू पर जहाँ इन्वेस्टिगेशन चालू है,
इसमें ज्यादा हम लोगों ने बोलना ये ठीक बात नहीं। सर, शिवसेना का कहना है, सर शिवसेना का कहना है परमवीर सिंह जो है वो बीजेपी के आदमी हैं और उन्होंने एलिगेशन लगाया है। एनसीपी का इस पर क्या कहना है, रिएक्शन? दूसरा, आपका क्या अभी तक सीएम साहब से कोई बातचीत हुई है? सीएम साहब अब तक क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? ये कुछ पार्टी में थे या कोई है, या मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अच्छा, आपका कोई रिएक्शन नहीं है? एनसीपी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है क्योंकि परमवीर सिंह के इशू? मैंने कभी देखा ना, मैं उनको कई सालों से देखता था, इनके बारे में कुछ बातें सुनने के लिए आती थी, मगर जो पॉलिटिकल पार्टी में है ऐसे मैंने कभी देखा नहीं। जिस दौरान आपने कहा कि मुझे डॉक्यूमेंट मिल गए और अब मुझे कंफर्म है कि वो नागपुर में थे, इस सारे संबंध में क्या उद्धव ठाकरे साहब से आपकी बातचीत हो रही है? खुद मुख्यमंत्री है, एलिगेशन उन्हीं पे लग रहा है, महाराष्ट्र की सरकार चल रही, क्या उससे कोई बातचीत हुई? मैंने कल ही उनसे बात की थी, मैंने आपको कहा था कि तो सर अभी तक सुनिए एक बार पूरे होने देना। मैंने उनसे बात की थी और उनको अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो भी उनके पास हम भेजेंगे और उनके सामने सच्चाई आई भी हो सकती है इससे पहले, वो मुझे मालूम है। अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे, ये तय है? सवाल है कि जो एलिगेशन किया है, ये एलिगेशन में सच्चाई नहीं। एलिगेशन का जो समय है वो समय में वो नहीं थे मुंबई में, वो नागपुर में हॉस्पिटल थे। ये बात साफ होने के बाद फिर इसमें और कोई एक्सपेक्ट करना ठीक है। इन्वेस्टिगेशन नहीं होने की जरूरत है सर, कोई इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत नहीं है आपको लगता है? सर एक जैसे आप कह रहे हैं कि देशमुख साहब हॉस्पिटल में थे, कोविड हुआ था उन्हें, तो क्या एनसीपी अनिल देशमुख को क्लीन चिट दे रही है? दूसरा सवाल ये कि अगर जांच चल रही है और गृह मंत्री वो बने रहेंगे तो जांच भी तो प्रभावित हो सकती है सर। ये जो बात जांच है, अभी जांच की बात इस बारे में तय करना है सीएम साहब को। मैंने कल भी कहा था कि जांच एक्चुअली शुरू नहीं, कल जो आपने या कल सीरियस कुछ एलिगेशन करने के बाद मैंने खुद सुझाव दिया था रिवर वैसे आदमी ने इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मगर ये बात जब साफ हो गई सामने कि जो समय उस समय वो नहीं थे, ये बात साफ होने के बाद फिर जांच करना या न करना हमारी अभी जीवन नहीं है, मगर जीवन वो सीएम साहब को हो सकती है तो उनका अधिकार है। गृहमंत्री पदावरती असताना अनिल देशमुख यांची चौकशी कशी करतायत? अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घ्यायला हवा. नाही पॉईंट आता चौकशीचा इश्यू कुठं आला की जे एलिगेशन होतं तेच खरं नाही हे सिद्ध दिसतंय आता. सीरियस एलिगेशन भी आपने लगाया है कि एटीएस की प्रोब राइट डायरेक्शन में जा रही थी और शायद का कहीं और नाम सामने आते, इसीलिए जो है डाइवर्ट किया गया। अभी अगर उसमें पहला केस देखा जाए जब एक्सप्लोजिव मिले थे, उस केस में भी अब तक कुछ नहीं हुआ है। तो सर क्या आपको लगता है कि जस्ट टू डाइवर्ट द अटेंशन ये किया गया है, चाहे जेलेटिन स्टिक्स वाला हो अंबानी के घर के बाहर और चाहे मनसुख हिरेन की मौत का मामला हो? सर मालूम नहीं, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में मेरा एटीएस पर भरोसा है। एटीएस जो कोई सच्चाई है वो सामने निकलेगी। ऐसे समय मेरे जैसे लोगों ने कुछ कमेंट करना ये ठीक नहीं कि जिसका गलत असर इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस पर होगा, और इसलिए इस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। कौन भेटले? नाही ते दुसऱ्या कामात ह्याचा काही संबंध नाही. कमलनाथची या प्रश्नावर चर्चा सुद्धा झाली नाही. त्यांचं कारण नाही, मध्य प्रदेशमधल्या काही प्रश्नासाठी ते माझ्याकडे आले नाही, कोणाची चर्चा नाही. परमवीर सिंग यांच्या पत्राचा मुद्दा जर आपण बाजूला ठेवला तरीही अनिल देशमुख हे गृहमंत्री असताना सचिन वाझे आणि इतरही पोलीस अधिकाऱ्यांचा त्या जिलेटिनच्या कारमध्ये इन्व्हॉल्वमेंट आहे, याची नैतिक जबाबदारी अनिल देशमुखांनी स्वीकारावी असं नाही वाटत का? त्यांचा पोलीस खात्यावरती वचन नाही? माझ्या मते याची जबाबदारी ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बघतो त्याची आहे. पवार सर, आपकी पार्टी में दो स्टैंडर्ड है. असं म्हटलेलं आहे की अनिल परब ज्या प्रकारे पवार सर, आपकी पार्टी में दो स्टैंडर्ड है. आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पे जिम्मेदारी सौंपी. आपके तमाम जो नेता, कल जयंत पाटिल ने भी कहा कि इस्तीफा नहीं होगा, तो एनसीपी के अंदर दो स्टैंड क्यों? राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आज मैं वही कह रहा हूँ. कल
क्योंकि वो मुंबई से, अरे सुनिए, कल हो कह देते, मैं आज कल नहीं कह सकता, आज मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जयंत पाटिल मुंबई से आए थे, उनके पास ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन थी, यह वो इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी, और इसलिए मैंने कल ये सीरियस इशू है और इसलिए इस बारे में मैंने कुछ कहा नहीं था। मगर आज आई एम एब्सोल्युटली clear after getting information of Nagpur hospital, allegation which is made against Mr. Deshmukh is not correct. सर मीटिंग तो 4 मार्च को हुआ था, इस्तीफा नहीं होगा जो कि इसमें प्रिंसिपल थे, पाटिल थे और सब लोग थे। 4 मार्च का मीटिंग जो लेटर है, हाँ, जो परमवीर सिंह ने लिखा है, उसमें 4 मार्च को मीटिंग हुई थी और वो 27 तारीख को He has quoted a meeting on 4th of 4th of March. March, and then he said, he mentioned in sir, there are two references. mid-February. The meeting that money was discussed. From the letter. He mentioned mid-February, same day, concerned officers briefed him that he has said from mid-February till ये 16 मार्च तक वो चुप क्यों बैठे थे? सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी। उन्होंने लेटर में इतनी सारी बातें लिखी, उन्होंने ये भी लिखा है that I went to the chief minister on a certain evening at Varta. I briefed him about what was going on. He says he briefed you as well. I want to ask you, Pawar sir, that if he came and he spoke to you, maybe you may not want to share what he told you, but did you make the effort to call the Home Minister, check with him what's going on? If he, and you have agreed to the fact that he came and met you, sir, what did you do after that? Pawar sir? Exactly. He mentioned same thing to me also. I don't hide. Okay. Then CP has briefed me also. He made allegation also. And definitely, whatever the time schedule which he has given and factual information as on today, there is a vast difference. And that's why question doesn't arise to take anything about Mr. Deshmukh. Sir, one question has not been asked about the political conspiracy. क्या आपको लगता है ये पूरा मसला जो है सियासी साजिश का है? क्योंकि आपने कहा कि बार बार मामले को भटकाने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार एक तरह से चुनौती है नरेंद्र मोदी सरकार के लिए भी बड़ी। तो क्या कहीं political मैंने conspiracy कल है? कहा था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन और इन लोगों ने कुछ स्टेटमेंट किए या कुछ डिमांड की। अपोजिशन का नेता का ये काम है, इस बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। ये कल मैंने कहा था, आज भी मेरा कहना वही है। राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी ते प्रामुख्याने सतत वारंवार करतात. प्रकाश आंबेडकर राजभवनावर जाऊन राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली. साधारणतः ज्यांच्या पाठीशी लोक आहेत, संसदेचे लोक आहेत, विधानसभेचे लोक आहेत, अशांची मताचा साधारणतः आम्ही कॉग्निशन घेतो. पवार साहब जो अभी सवाल पूछेंगे मौसमी, मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो कह रहे हैं कि जो मेन इन्वेस्टिगेशन है उससे डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है इस तरह के एलिगेशन लगा के। सर ये फरवरी किसके बेहस पे कर रहे हैं? मैं जानता नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं. That's why I will not take any wild allegation unless I got something. सर आपने जो हॉस्पिटल में एडमिट होने की बात बताई देशमुख साहब के, लेकिन 15 तारीख को उन्हें फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट जो है हॉस्पिटल की तरफ से मिल गया था, तो क्या इस बात के लिए भी आप श्योर हैं कि 16 तारीख के बाद भी उनकी मुलाकात नहीं हुई है, आपकी बात हुई है? कि मुलाकात हुई क्या नहीं ये मैं जानता नहीं हूँ, मगर जो कुछ एलिगेशन थे उसका समय और फैक्चुअल स्थिति में फर्क है. और दूसरी बात ये है कि मेन इशू दूसरा है. मेन इशू ये नहीं है. मेन इशू अंबानी के सामने कुछ बातें रखी गई, इसमें इन्वॉल्व होने वाले कौन लोग थे, ये किसकी साजिश थी, ये मेन इशू है. ये मेन इशू में ऐसे कुछ नाम आ रहे हैं कि जिसकी डिटेल इंक्वायरी होने की आवश्यकता है. आप लोगों ने, आप यानी टेलीविजन ने ये दिखाई कि वो जीप से कौन उतरता है, कौन जाता है, कौन बैठता है, किसने गाड़ी, जीप से जाने के बाद कौन से गाड़ी से गए, वो इनोवा किसकी थी, ये सब बातें आप लोगों ने दिखाई. मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं. और ये सब देखने के बाद डेफिनेटली मेन इन्वेस्टिगेशन एटीएस कर रही है. शायद जो जिनको पसंद नहीं वो लोग डाइवर्ट करने की कुछ कोशिश कर रहे थे,
इस तरह की आशंका पैदा हो सकती क्या है। आपका कहना ऐसा है परमवीर सिंह की तरफ ये पूरी जांच जो है परमवीर सिंह की तरफ जा रही थी, इसलिए परमवीर सिंह ने ये किया, आपका कहना ऐसा है? मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है किसी इंडिविजुअल। DGP rank officer has leveled allegation against the Home Minister. Don't you think that it should be proved properly? At least till the At least till investigation the is on, इसने so किया। he's stepping down. Don't you think that it should be Which proved? DCP? Sir, DGP rank level. officer. He's talking about Paramveer Singh, sir. DG level No, no, A that, senior officer has leveled allegation. no, basically, efforts I said is to divert main serious case. And I don't want that case has to be diverted. सर एक बहुत मैं सर I wrote the letter because Paramveer has reacted today saying I wrote the letter because I was hurt. I have not met any BJP leader. I have not gone to meet. There is no politics about it. And the question should be answered. Didn't Anil Deshmukh meet Sachin Waze many times? Basically, I don't know about what he said, but what he said because I told that he met me. Mr. Pawar, I have not said about others. I have not said whether he met anybody in Delhi or anything. पवार सर अभी एक अमित मालवीय ने ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि 15 फरवरी को अनिल देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद अमित मालवीय ने ट्वीट किया है कि 15 फरवरी को अनिल देशमुख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वीडियो भी साझा किया। है अनिल देशमुख का 15 फरवरी को अनिल देशमुख ने खुद ट्वीट किया है 15 फरवरी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे ठीक हैं। है ना? तो आप सब कह रहे हैं कि वो क्वारंटीन में थे, आप कह रहे हैं वो घर में थे। आपने अभी डेट दिया सर 15 से 27 ये मेरे पास होम क्वारंटीन सर। ये मेरे पास ऑफिशियल सर आप ये अनिल खुद की है कौन सी है किसको मालूम? सर देखिए ना ये अनिल देशमुख का खुद का ट्वीट 15 फरवरी का ट्वीट है सर। 15 फरवरी का ट्वीट है सर। 15 फरवरी का ट्वीट है सर। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मेरे पास Pawar sir, पंद्रह do you want to see it? I'll show it to you. This is 15 फरवरी का सर्टिफिकेट। Sir, this is Anil Deshmukh's नहीं, Twitter ठीक है, page if you want to see. I am giving this. That's fine, sir. But he has just press conference and he has व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची प्रेस कॉल होती. अच्छा, I was told this is a video conferencing press statement. What statement? VC किया है। ये देखो घर पे खड़े बैठे में बैठेंगे ना VC में आदमी घर पे ही बैठता है। सर माइक आईडी जो कहते ये वीसी की बात है जो बताया आपके सामने बताया, इसलिए मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहता। और इम्पोर्टेंट गोस ये नहीं है। इम्पोर्टेंट गोस ये बात है कि ये इनके घर के सामने जो बात हुई थी, एक जिसकी हत्या हुई वो 2, इसकी हत्या को कौन जिम्मेदार है वो 3। ये सीरियस बात आप छोड़कर आप डाइवर्ट कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं। इतना मुझे कहना आई हैव ऑलरेडी रिप्लाई इनफ इज इनफ। सर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे बाला साहब फराट और अशोक चौहान। उन्होंने कहा बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है लेकिन इसका भी एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। आपके सहयोगी दल का ये बयान आया है जो महाराष्ट्र के इंचार्ज हैं जो पार्टी उन्होंने ऑन रिकॉर्ड की बात की। उन्होंने क्या कहा मुझे मालूम है, क्योंकि मुझसे बात नहीं की। जहाँ तक मुझसे बात हुई तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन इस पर मैंने कमेंट करना ठीक है, और किसी ने कुछ होगा तो इस पर मैं कमेंट नहीं करना। और सब ऐसा भी कुछ है कि एनसीपी में कुछ लोग चाहते हैं कि अनिल देशमुख को इस्तीफा दें, ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं। Sir, I know you came back and reverted in the press conference to all the details. अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्यासाठी संजय राठोड शिवसेनेचा काही दबाव आहे का अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याचा? कारण की संजय राठोड यांचा एकीकडे राजीनामा घेतला जातोय, दुसरीकडे गृहमंत्र्यांवर एवढ्या गंभीर स्वरूपाचे आरोप होत असताना गृहमंत्र्यांचा राजीनामा का घेतला जाऊ नये अशी देखील त्यांची ऐसा क्या आरोप? nobody has made any pressure or discuss on Shivsena side with me. Sir, nobody's questioning whatever documents you have. Do you think that Anil Deshmukh kept you in the dark giving these documents while he's doing a press conference on 15th February with lots of mics? Like
Like journalists might have come, na sir. हाँ, होता है ना। हम मेरे पास कई बार हमारी कॉन्फ्रेंस होती है, प्राइम मिनिस्टर के साथ कॉन्फ्रेंस होती है, अकेले नहीं, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं और पार्टी के नेता होते हैं। मैं मुंबई से बात करता हूँ, एक इलाहाबाद से बात करता है, एक लखनऊ से बात करता है। ये सिस्टम आजकल है। आज आप देखिए, हमेशा आजकल हम लोग आप लोगों को बुलाते नहीं है। वो बातचीत ऐसे है परमवीर से भी मिल सकते थे ना सर, तब तो परमवीर से भी मिल सकते थे, सचिन वाजे से भी मिल सकते थे। कुड हैव मेट द केस पीपल सामने जब वो मीडिया से मिल सकते थे। 15 फरवरी को जो परमवीर जी कह रहे हैं सही भी हो सकता है ना सर कि मिड फेब में मुलाकात देंगे क्या? अनिल देशमुख म्हणले मी हॉस्पिटलमधून घरी जाताना हे सगळे उभे होते, मी 2 मिनिटं थांबून त्यांच्याशी बोललो। थोड़ा क्लियर कर दीजिए सर, क्लियर नहीं है। मुझे टीचर मालूम नहीं है, मैं कैसे क्लियर करूँगा? जो इन्फॉर्मेशन मुझे लिमिटेड है वहाँ तक की बात करूँगा। नो क्वेश्चन इनफ, आई हैव रिप्लाइड। जो हमारी सरकार है वो अनिल देशमुख को क्या क्लीन चिट देने के लिए जल्दबाजी कर रहा है? रिपीट योर क्वेश्चन। आरोप ये लग रहा है, सवाल ये उठ रहा है कि जो महाविकास आघाड़ी सरकार है वो अनिल देशमुख को क्लीन चिट देने में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है? किसकी जल्दबाजी की? सर यू आर सेइंग कि हम लोग को कोई जरूरत नहीं है प्रूफ की, ऐसी कोई खास जरूरत लगती नहीं है। मैंने कहा कि अभी जो हमारे सामने जो इन्फॉर्मेशन आई है, इससे ये बात दिखाई देती है कि मेन इशू को डाइवर्ट करने की साजिश करती है। सर जैसे आप ब्रीफिंग हम लोग से बातचीत कर रहे हैं, अभी तमाम लोगों ने पूछा, जैसे आप ब्रीफिंग कर रहे हैं उसी तरह अनिल देशमुख का ब्रीफिंग है। तो आप जिस आधार पर उनको क्लीन चिट देने की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि मैंने इतना कहा कि उस समय वो हॉस्पिटल में थे, ऐसा मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये बात मैंने आपको कही। इस तरह की बात सामने आ रही है, थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ सस्पिशन है, तो क्या आपको नहीं लगता इसको इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए? मैंने ये कहा था कि भाई सीएम साहब की अथॉरिटी है, सीएम साहब इसमें जो कुछ कर सकते हैं, आवश्यकता उनसे रहती है वो कर सकते हैं। और ये मैंने कल भी कहा था और आज भी कहता हूँ। सर इसी में सवाल है, एनसीपी का क्या स्टैंड है? एनसीपी चाहती है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए अनिल देशमुख और परमवीर वाले? बात एनसीपी के प्रेसिडेंट के सामने ये कागजात आने के बाद इसमें जो एलिगेशन हो रही है ये क्लियर हो नहीं रही। ऐसी परिस्थिति में खाली किसी ने तो एलिगेशन किए। अच्छा, एलिगेशन किसने किए? जिसके खिलाफ कुछ न कुछ कदम उठाए गए थे और इससे नाराजगी हो रही थी, ऐसे लोगों ने एलिगेशन किए थे। इस बारे में जो कुछ गवर्नमेंट को करना, अल्टीमेटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज द फाइनल अथॉरिटी, चीफ मिनिस्टर इज द फाइनल अथॉरिटी, दे गॉट एवरी राइट टू वेदर दे वांट टू इंक्वायर देयर ऑफिसर, देयर मिनिस्टर or there any other colleague. We have no objection. We will not come in that issue. देशमुख प्रकरणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांचे तुमची काही फोनवर आता संवाद झालेला आहे का सर? नाही, मी कालच सांगितलं. I have talked with him. Just beyond that nothing. सर कालच्या बैठकीत काय झालं? काल अजित पवार, जयंत पाटील या ठिकाणी आले होते, संजय राऊतही तुम्हाला भेटले, प्रफुल्ल पटेलही भेटले. काय नेमकं झालं होतं कालच्या बैठकीत? नेमकी कुठल्या विषयावर चर्चा झाली? कालच्या बैठकीत पंढरपूरला कोण उमेदवार उभा करायचा याची चर्चा झाली. आज तिथं बसून तो कॅन्डिडेट तिथं बाय इलेक्शन आहे, त्या बाय इलेक्शनच्या संबंधीची पुढची पावलं टाकली. काही कॅम्पेनच्या दृष्टीनं आणखीन काय करायची आवश्यकता आहे त्या गोष्टीची चर्चा. प्रदेशाध्यक्षांकडनं राज्यातल्या परिस्थितीचा आढावा घेतला नाही. राज्यात आपल्याबद्दल काय मत आहे याचा आढावा प्रदेशाध्यक्षांकडनं घेतला नाही का कालच्या बैठकीत या प्रकरणाचा? मला काय फारशी त्याच्यात आवश्यकता वाटते. सर एक और जानकारी आई है हम लोग के चैनल में अभी परमवीर सिंह को लेकर कल आपने कहा था कि 100 करोड़ के कलेक्शन का जिक्र नहीं है, कल आपने जो प्रेस ब्रीफिंग की थी, लेकिन अभी परमवीर सिंह के हवाले से ही एक जानकारी आ रही है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड नहीं बोला है। उनका कहना है कि जब पैसे के बारे में पूछा जाएगा तब उसकी जानकारी वो जरूर देंगे, 100 करोड़ के बारे में। ठीक है, इनका जो लेटर है उनका खुद का, इसमें 100 करोड़ की बात है। जी आपने कहा था कि कलेक्शन का जिक्र नहीं है, उन्होंने कहा है नहीं, एक जगह पर उन्होंने कहा था 50, यानी उन्होंने मीडिया ने, और इसमें 100 किया है। मैंने फिर
अभी देख रहे ठीक तरह से, तो इसमें सब का उल्लेख है। थैंक यू। Thank you, sir, for answering all the questions.